Hi, welcome to SD Management Institute and Commerce Classes, SDMIC Classes. Learning accounts is easy. I made it easy. This is in continuation of my previous videos, Learn Accounting Part 4. This is in continuation of my previous video, Learn Accounting Part 4. We briefly explained about accounts and accounting. Already we have completed 5 videos, part 1, part 2a, part 2b, part 3 and part 4. And this one is 5th one. And with this we will complete accounting method and accounting cycle, how to do to finalization. In this Learn Accounting Part 5 video, I will revise in brief. We will recollect what happened in our 4 previous videos sessions. Also, I will show you finalization of proprietary business and a partnership concern. Corporate accounting is slightly bit more in detail, so we are not doing that, but it is almost the same. Once you learn the finalization of proprietary business and partnership concern, it will be easy. You can learn corporate accounting also, and so the principles, rules and everything is same, but the presentation and the deep of that will be little bit more in corporate accounts, but it's not difficult. Once if you learn this thing, proprietary accounts finalization, partnership finalization, you can also do that other things. Chalo, let us start with the 5th video of accounting. Now accounts. Importance of accounts. Why accounting is important for investors. We have explained about importance of accounts earlier also. Now this I am just explaining why it is important for investors. Investors, you know who are the investors. Investors means those who put money in their business. Outsiders, anybody interested in the business will put money either in the capital for sharing profits, or they will invest in the business for taking some higher returns like interest or any other benefits like. So that is they are called investors. The work performed by accountants is at the heart of modern financial markets. So accountants का काम इधर बहुत important है. वही सब जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करके सो जो डिज़ाइन उसको जो बनाना पड़ेगा, हाउ टू जो द फॉर्मेट, द डिज़ाइन एंड ऑल दिस थिंग एंड द मेन थिंग्स to the inputs the accountant has to provide. Without accounting, investors would be unable to rely on timely and or accurate financial information, and companies' executives would lack the transparency needed to manage risk or plan projects. If the accounting is not there, then investors would not be able to understand what is happening and what is that, and how to whether they should put in money, whether the business is a profitable business, or can it make it profitable by putting their money into this, and whether they will get back their investment, or whether they will get that either if they are investing for profit, whether they will get the profit and their capital, their principal will be safe, or they will be getting higher returns like interest or any other bonus or any other like that things, whether they will be getting and they are safe, that they want to know. So regulators also rely on accountants for critical functions such as providing auditors' opinion on companies' annual return filings. So regulators like SEBI, Stock Exchange Board of India, this is for corporate concern. Publicly limited companies, that account should be, that result should be published in newspaper, and also should be timely filed with the Stock Exchange Board of India, SEBI. They are the regulators of that. If the public is invested, then there is a regulatory body coming. If it is a private, there won't be any regulatory. Only that means that ROC and all the things are coming. Here, not only ROC, the other regulators like SEBI and these things are coming in. So if the accounts are not timely and if it is wrong information, then it will be difficult to analyze, and that annual return filings will be delayed. So that should not happen. So accountant has an important role. In short,
although accounting is sometimes overlooked, it is absolutely critical for the smooth functioning of modern finance. In short, although accounting is sometimes overlooked, it is absolutely critical for the smooth functioning of modern finance. You must have got it. The fundamentals of corporate finance and accounting. Whatever your real learning style is, understanding finance and accounting is easy if you follow systematic basic learning. Corporate finance and accounting is slightly vast and it need experience that one can learn through practice. So this already we just explained, discussed in the previous slide when we just about to start it. Once you learn the proprietary accounts, financial finalization, and partnership accounts finalization, and all this thing, it is all you can just systematically means if you know the basics of accounts and the rules of accounts and the importance of accounts, the types of accounts, all these things. If you know the basic rules, the principles, you can make you can get into corporate finance accounting. It is little bit vast. That is the reason you need some more experience and more learning. That can you can acquire through experience and through practice. All accounts are structurally and fundamentally same. This is also I told you means that the accounts is almost the same. There is no difference. The rules, the fundamental rules, basics, types, and all these things are fundamentally the same. Whereas heads of accounts and a presentation of financial statements are different due to nature of the product, process, and constitution of the business. अभी समझो मीन्स या नेचर क्या है. फॉर एग्जांपल सर्विस इंडस्ट्री है तो उसके हिसाब से वो अलग एक मेथड ऑफ अकाउंटिंग हो जाता है, बट द प्रिंसिपल्स रूल्स एंड एवरीथिंग विल बी सेम. एंड द प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट में भी काफ़ी रहता है, कोई फूड प्रोडक्ट्स रहता है, कोई मेडिकल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है, मेडिसिन, कोई इंजीनियरिंग गुड्स होता है, कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होता है. सेवरल टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग होता है, सेवरल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स होता है. तो उसमें इसके हिसाब से जो वो जो बिजनेस के हिसाब से उसको सेट करना पड़ेगा. उसका जो प्रोडक्ट्स, उसका हेड ऑफ अकाउंट्स, उसका जो नेचर ऑफ थिंग्स, दैट शुड बी डिसाइडेड एंड फॉर्म्ड. एंड द प्रोसेस एंड उसका प्रोसेसिंग कैसे होते हैं, उसके अनुसार मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये सब के हिसाब से वो एक थोड़ा ये होता है. बट द बेसिक स्ट्रक्चर विल नेवर चेंज. अकाउंट हेड्स, दैट टाइप दैट can change, but there won't be any change in the structure and fundamentals of accounts. And the constitution of business, like if it is a corporate body, is a private limited or public limited, means a proprietary business or a partnership business, accordingly that will change. That the accountant has to make it in such way. Now, but the rules, principles and basic structure cannot change. स्टार्टिंग से मैं बोल रहा हूँ, द रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड बेसिक स्ट्रक्चर कैनॉट चेंज. सो वंस हु लर्न द बेसिक रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड बेसिक स्ट्रक्चर, दे कैन डू एनी अकाउंट्स. जस्ट टू गेट इनटू सम मोर लर्निंग एंड प्रैक्टिस, दैट इज इनफ. नाउ accounts and its benefits. Accounts. We have completed 5 videos including part 2A and part 2B regarding accounting, its importance and benefits. Let us recapitulate what we gone through in our previous videos. It's just for the memory, just recollecting. I'm just telling what we learned. So many things we learned in our previous 5 videos. So just go through what we learned. Accounts we learned. Accounts is transactions recorded and summarized for easy understanding. Accounting we learned the process of classifying and recording transactions of documents, summarizing, analyzing, interpreting and reporting of business transaction. Now types of accounting we learned: financial accounting, managerial accounting, cost accounting and tax accounting, and many few other accounts also for the purpose of various activities. Importance of accounting we learned, need of accounting we learned, terms of accounting we learned, and accounting cycle we learned. Means from where to start, means that from the basic documents, voucher to or invoice collection to filing and just entering into the registers and then posting and making trial balance and then finalization. That is the accounting cycle, that also we learned. Now
real account we learned, nominal account, types of accounts, real account, nominal account, personal account. Then rules of accounts we learned, then every double entry bookkeeping, double entry accounting system, every debit entry there will be a corresponding credit entry, like that debit and credit should be equal. So that is a fundamental law, double entry bookkeeping, double entry accounting system. So now we learned assets, what is assets, what is liabilities, capital, equity, etc. Capital accounts of proprietor we learned, corporate and capital account, equity capital, etc. we learned. Now capital accounts of proprietor, corporate and partnership capital accounts in detail we learned. Proprietor and corporate just explained, this is a way, and partnership account we explained in detail, because there are two other accounts also coming. Means there is a fixed capital and a floating capital. Fixed capital there are two types, one fixed and the other one is a current capital, and there is a fluctuating capital account. That is the reason explained in detail, and examples also I have given, some format given, then an example also we illustrated. Now journal entries we learned, subsidiary registers we learned, ledger posting, then trial balance making, format of final accounts, trading, profit and loss account. Then profit and loss account and balance sheet are prepared in two styles, such as T form and other vertical form. These two types also I explained. Then now we will see the final accounts of a proprietary business and also partnership business concern. Almost same for corporate, also with slight changes in presentation. So now because it takes a little bit more time, so we are just getting directly into this thing, because this format of accounts we already learned in our video 4. In that we have already given the format of trial balance, trading account, profit and loss account. Trading and profit and loss account combined means then the financial statements and balance sheet also I explained. The format is already given. Now we are just getting into the example, illustration I am giving a proprietary business account and a partnership concern. So and corporate I am not giving you here because it's almost the same, but little bit more in detail that one can easily learn. Okay, now let us start directly getting into this thing. Proprietor's final account. So आई एम जस्ट गिविंग मीन्स एक फूड प्रोडक्ट्स कंपनी का एक ट्रायल बैलेंस लेके हम लोग ये जो एग्जाम्पल के साथ में ये जो करते हैं. ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ YM फूड्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ended 31st March 2019 and balance sheet is on that date after considering the additional information given below. Now prepare trading and profit and loss account and balance sheet. What are our objective? Means what we have to do, prepare trading and profit and loss account, and then the financial statement is balance sheet. Now trial balance of YM food products as on 31st March 2019. The trial balance is given here, and normally these things this trading profit and loss account I just made it because of the time constraint. I am just given it. I will explain that how to make it. If the trial balance is made, trial balance will be extracted from the ledger that you know now, that is already explained. So when the debit side of the ledger balance, debit balance of ledger accounts are taken on the debit side, and credit balance of the ledger accounts are taken on the credit side. Okay. So now let's go through the trial balance. Stock is on 1/4/2018. So 2018 we are making 2019. So 1/4/2018, 1st April 2018 means that is opening stock. Opening stock for goods, that is 2,48,000. Capital account 8 lakhs. Purchases 44,22,500. Wages 4,80,000. Carriage inward 2 lakhs. Salary 6 lakhs. Sundry creditors 6,47,600. Bills payable 20,000. Cash in hand 3,650. Insurance 1,20,000. 1,200. Insurance 1,200. Sundry debtors 31,69,000. Bank overdraft 1,80,000. Carriage outward 40,900. Land and building 8,42,500. Furniture and
Fixtures is 2,38,700. Sales 86,87,000. Purchase return 500. Sales return 400. Rent paid 1,800. Maybe some other some rent diya hoga, since that is the reason. And bad debts 300. RDD reserve for doubtful debts 350. Discount paid 700 and discount received 1,000 rupees. So now traveling expenses 36,250, advertisement expense 54,150. Now when you just go to into the details, and you have to just that will take more time. What is this traveling expenses, and how can just what is the how can that be accounted into this thing, whether it is a personal or any other thing, or it is a business purpose, all these things, and what are the documents required for reimbursement of traveling expenses, all these things, that is a bit more in detail. So I am just giving, because of time constraint, I am just giving this in brief. You can learn this. Okay. Now the additional information and adjustment, because this is a structural trial balance. Okay, now we have to make a final trial balance after incorporating the final this thing, but we can directly enter once these adjustments are given, adjustment entries are given as an additional information. We can directly make a trading account and profit and loss account and balance sheet. So while making this entering this, making this thing, this adjustment entries are passed here itself directly. So now closing stock is 4,48,700. Outstanding expenses, wages 700 baki tha, or traveling expenses 200 baki tha payment ke liye, that is outstanding. And depreciate land and building 10% and furniture by 5%. Insurance paid in advance insurance payment किया था 300 rupees का, and goods were 300 destroyed by fire. Insurance company rejected the claim. और 3,000 रुपये का मीन्स जो goods जो फाइनल जो finished goods है और फायर से डिस्ट्रॉय हो गया था, और इंश्योरेंस क्लेम किया था, बट इंश्योरेंस वो कंपनी और रिजेक्ट किया क्लेम. सो दैट इज अ लॉस. Now, how to make the trading and profit and loss account? So I just put in here number wise. See, my practice is that when I take it, I would tick it here, ticking. So means when I make the profit trading account, when I will start taking from the starting. So start ticking here 1, 2, 3, 4 like that. यहाँ के एक ticking करते रहेंगे. So that means this is taken from the trial balance, and along with that adjustment will be incorporated. So stock is taken. So this is number one. So now like this. So now stock is taken. So 1. So where it is taken? Trading account. For opening stock 2,48,000. Now second, that is what capital account. So 2. Capital account where we have to take to the balance sheet. Okay, so now YM Foods, the structure, YM Foods trading profit and loss account for the year ended 31st March 2019. Okay, so here also this is from 1st April to 31st March 2019 we have to do, and here we have to write as on 31st March. Okay, because as on any date, balance sheet comes as on any particular date. So now capital account is taken, balance brought down 8 lakhs. So second we taken. Now purchases 3. Purchases 44 lakhs 22,000. Now that is taken. Now here there is a purchase return. So we will take it means one by one only. Now wages 4. So wages, when we are taking, there is a means that this thing also to be taken. This is kept pending. Now this is adjustment entries. This outstanding expenses 700 rupees. Wages is there. So what we will take first, wages 4,80,000. Where will this wages come? This comes in trading account. So wages and salaries. Here it is only wages. Wages 4,80,000. Then this add outstanding expenses means ये देने का बाकी था. Okay, तो add outstanding wages. This is 4,80,700. Now this third हो गया, और ये जो adjustment का ये जो first part हो गया. Okay, ये वाला इसको भी टिक करो. Okay, then
कैरेज इनवर्ड कहाँ आता है? कैरेज इनवर्ड विल कम इन ट्रेडिंग अकाउंट्स. सो नाउ दिस इज फिफ्थ एंट्री. तो यहाँ ऐसे टिक करते जाता है. दैट इज माई प्रैक्टिस. देन कैरेज इनवर्ड 2 lakhs. नाउ what is that? Salary where it will come? Sixth entry, salary. Why I am doing this means that means हम लोग कुछ भी we will not left out, there won't be anything left out. पूरा निकलता है ट्रायल बैलेंस है. अब ट्रायल बैलेंस से टैली है क्या? या फॉर एग्जांपल अगर समझो इसमें हम लोग 100 रुपीज़ डाल दिया, इधर डिफरेंस आ गया, तो डिफरेंस हम लोग ये फार्मूला में डाल के रखते हैं. ओके, सो देयर इज़ नो डिफरेंस. ट्रायल बैलेंस इज टैलीड. सो नो ये ट्रायल बैलेंस से ये सब जो बनाता है. So now salary कहाँ लेने का है? Salary will take in profit and loss account. So see now that here I have taken salary. Okay, now this insurance जो पहले लिया है actually salary जो starting से लेना है. Okay, ठीक है. Okay, to salary account. Salary account 6 lakhs. कुछ आउटस्टैंडिंग या एडिशनल इंफॉर्मेशन है या नहीं है? Now then what is that? Sundry creditors 6, 7. Sundry creditors कहाँ आएगा? Sundry creditors में कुछ एडजस्टमेंट है क्या? No, कुछ एडजस्टमेंट नहीं है. तो sundry creditors कहाँ लेगा? That will go to balance sheet. तो balance sheet में कहाँ आएगा? Where is balance sheet? हाँ, balance sheet. YM4 balance sheet. Sundry creditors 6,47,600. Now ये क्या है? Bills payable. Bills payable कहाँ आएगा? वो भी बैलेंस शीट में आएगा, बिकॉज दैट इज़ नॉट ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइटम, इट इज़ अ पेएबल आइटम. सो बिल्स पेएबल 20,000. ओके, दैट इज़ टेकन. सो नाउ वो सीरियली ले सकते हैं, दैट विल बी बेटर. ओके, नाउ कैश इन हैंड ये कहाँ आएगा? 9. कैश इन हैंड आएगा इधर अपना बैलेंस शीट में. कैश इन हैंड 3650. कैश इन हैंड आ गया. नाउ ये क्या है? इंश्योरेंस 10. इंश्योरेंस ले लिया. इंश्योरेंस कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ एडजस्टमेंट है क्या? इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, प्रीपेड इंश्योरेंस. सो इंश्योरेंस लेस प्रीपेड, ये जो पहले ही पेमेंट करती है एक्चुअली ये साल का पूरा 1,200 रुपया देता, लेकिन वो ये इतना पार्ट 300 रुपीज़ प्रीपेड था. फॉर एग्जांपल अगर समझो 12 महीने का एक साथ में देते हैं, लेकिन वो 12 महीने का 1,200 रुपया है, लेकिन वो दिया होगा 1 जुलाई को, तो 3 महीने का ऑलरेडी गया. तो अगले मीन्स 31 मार्च के बाद में अप्रैल मई जून अगर 3 महीने का आता है तो 300 रुपीज़ का जो है वो इधर एक्स्ट्रा अपने को निकालना पड़ेगा, क्योंकि दिस पर्टेन टू द नेक्स्ट ईयर, दैट इज़ प्रीपेड. सो इंश्योरेंस लेस प्रीपेड इज इक्वल टू 900 रुपीज़. तो इंश्योरेंस आ गया. इंश्योरेंस में से जो एडजस्टमेंट का ये भी एंट्री हो गया. ओके, नाउ आ गया हम लोग सन्ड्री डेटर्स. सन्ड्री डेटर्स कहाँ आएगा? दिस इज नॉट ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइटम, दिस इज अ बैलेंस शीट आइटम. सो सन्ड्री डेटर्स कहाँ? डायरेक्टली बैलेंस शीट में आ गया. इधर 31,69,000. नाउ 39,69,000. नाउ बैंक ओवरड्राफ्ट वो कहाँ आएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट इज एन लायबिलिटी, इट विल कम इन बैलेंस शीट liability side. Bank overdraft 1,80,000. This is a liability side, this is an asset side. You know that, no? Already explained. Now bank overdraft इधर ले लिया. Now क्या आ रहा है? Carriage outward. Carriage outward is a profit and loss account item. So carriage outward इसमें कुछ adjustment है क्या? Carriage outward में नहीं है. Okay, carriage outward 40,900. Now land and building क्या है? असेट है, तो बैलेंस शीट में जाएगा. बट इसमें लैंड एंड बिल्डिंग में एक ये है डेप्रिसिएशन है क्या? असेट्स में डेप्रिसिएशन आता है. सो कोई आइटम्स डेप्रिसिएट नहीं होता. फॉर एग्जांपल कि सिर्फ लैंड रहेगा तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं लेता, लेकिन बिल्डिंग रहेगा तो डेप्रिसिएशन लेता है. बिल्डिंग तो डेप्रिसिएट होता है, मशीनरी डेप्रिसिएट होता है, फर्नीचर डेप्रिसिएट होता है, अदर आइटम्स जो भी है यूजेबल आइटम्स जो है वो सब डेप्रिसिएट होता है. तो ये जो है तो ये इसमें ले लिया. तो डिप्रिसिएशन का हम लोग ने वर्किंग नोट नहीं बनाया है. तो डिप्रिसिएशन क्योंकि ये 10% डायरेक्टली है डिप्रिसिएशन. तो डिप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 10% बिल्डिंग का है, तो इसका डिप्रिसिएशन 8,42,500 है. तो 8,245 इसका डिप्रिसिएशन होता है, और डिप्रिसिएशन टोटली इधर आ जाता है डिप्रिसिएशन. तो लैंड एंड बिल्डिंग में 84,250 डिप्रिसिएशन माइनस करके 7,58,000 इसमें जो आउटर कॉलम में आ गया. ना हो इसमें ये आ गया फर्नीचर
फर्नीचर 15 एंट्री फर्नीचर आ गया, तो फर्नीचर 2,38,000, इसका डिप्रिसिएशन कितना निकलेगा 5%। तो डिप्रिसिएशन ऑन वो भी बैलेंस शीट आइटम है, तो 2,38,700 लेस 5% डिप्रिसिएशन, 5% डिप्रिसिएशन इज 11,935, तो 2,26,765 बैलेंस आउटर कॉलम में ले लिया। सो ये जो डिप्रिशिएट हो गया, ये जो टोटल में से ये जो टोटल ये दो डिप्रिसिएशन हो गया, ये डिप्रिसिएशन इज टू बी टेकन टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये जो खर्चा है ये पूरा का पूरा खर्चा नहीं है, लेकिन ये जो है जो इसमें से जो डिडक्ट करते हैं हर साल में वो जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेने का, तो इसके दोनों का कंबाइन इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। डिप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 84,250 प्लस फर्नीचर का 11,935, टोटल 96,185 इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गया। नाउ वो हो गया। नाउ कितना सेल्स, सेल्स क्या है, रेवेन्यू आइटम है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। भाई सेल्स 86,87,000 और एंट्री ले लिया। नाउ ये कौन सा है, परचेस रिटर्न 70, ये परचेस रिटर्न है, तो क्या करेगा, ये परचेस में से डिडक्ट करेगा। देखो इधर लेस परचेस रिटर्न 500, तो 44,20,500 में से 500 डिडक्ट करके 44,22,000। नाउ सेम वे सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न क्या करेगा, अभी हम लोग जो सेल्स में से वो माइनस करेगा, सेल्स में से माइनस करेगा 400 रुपीज़, तो 86,87,000 में से 400 माइनस करके 86,600 रुपीज़ का सेल, ये जो आउटर कॉलम में ले लिया। इधर ये जो इधर करके ये जो आउटर कॉलम में ले लिया, ये जो इधर करके इसको आउटर कॉलम में ले लिया। नाउ ये क्या है, रेंट, रेंट रिसीट है, दिस एन इनकम, इनकम यह है क्रेडिट साइड में, तो रेंट रिसीव्ड है, रेंट रिसीव्ड अदर इनकम है, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले लेगा। तो इधर रेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जो पार्ट है ये पार्ट है, ये ट्रेडिंग पार्ट है, ट्रेडिंग अकाउंट, और दिस उसका नीचे जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्ट। तो ये जो रेंट है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले लिया, नॉट ट्रेडिंग अकाउंट, इट्स अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले लिया। और देन बैड डेट्स, बैड डेट्स 20, बैड डेट्स कहाँ लिया, बैड डेट्स इधर आप लोग इधर डेबिट इधर भी ले सकते हैं, यानी तो उसका एक नेट है, नेट आउट करके भी ले सकते हैं, क्योंकि बैड डेट्स भी है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स है, तो वो ये करके देखो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है 350 है, तो उसमें से बैड डेट्स माइनस करके जो नेट आउट करके, यानी तो इसको क्रेडिट साइड ले सकता है और उसको डेबिट का इसको पूरा राइट ऑफ कर सकता है ये 300 को, तो भी नेट इफेक्ट ही आ जाता है, क्योंकि ये डेबिट है क्रेडिट है, इसमें से इधर डेबिट करेगा 300 और 350 करेगा तो भी ये माइनस यही आ जाएगा। तो बैड डेट्स जो ये है वो माइनस करके 50,000, यू कैन टेक इट हियर द RDD, you can take it here 350 and bad debts will be written off completely, so 500 हो गया, सॉरी 300 इधर ले लिया, तो भी नेट ये इफेक्ट होता है, इसके लिए ऐसा लिया। नाउ 21 ये ले लिया, और डिस्काउंट, ये डिस्काउंट रिसीव्ड ये है, डिस्काउंट पेड ये है, तो 22 डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है 1000, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइटम में आ गया, नॉट ट्रेडिंग अकाउंट, इससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइटम में इधर डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट पेड इज एक्सपेंडिचर, और डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम वो इधर ले लिया, और डिस्काउंट पेड इज एन एक्सपेंडिचर 700 रुपीज़ इधर ले लिया। नाउ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 23, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को इधर लिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में कुछ एडजस्टमेंट है, इधर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में 200 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग है, पेमेंट करना बाकी है, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इधर ले लिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऐड आउटस्टैंडिंग, ये जो आउटस्टैंडिंग है 200 रुपीज़ ऐड करके 36,450 इधर आउटर कॉलम में ले लिया। नाउ एडवर्टाइजमेंट में कुछ ये है क्या, नहीं है, तो 24, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 54,150 ये। नाउ जो लास्ट जो है गुड्स रिसीव्ड, हम लोग ने इधर प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में ये जो गुड लॉस बाय फायर इधर लिया है, तो उसको इफेक्ट हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ करना चाहिए, तो हम लोग ने किधर ले लिया, गुड्स लॉस बाय फायर 3,000 रुपीज़। क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री करने का है, इधर क्लोजिंग स्टॉक लिया है, ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट करने का ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट ऐसा ये सब हम लोग ने ले लिया और क्लोजिंग स्टॉक ले लिया।
और ये जो ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, ये जो सब लेने के बाद में ये जो टोटल में से क्लोजिंग स्टॉक ये सब लेने के बाद में 91,38,300 में से ये जो है, ये जो जितना है, एंड दिस इज़ 53,50,700, 50,700 ये जो है वो इसमें से माइनस करेगा तो 37,87,600 हो जाता है. यू गॉट इट. तो ये जो हम लोग क्या किया है इधर ब्रॉडफोर्ड कराया, दिस इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी. तो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग इधर ब्रॉड डाउन किया है. ये जो ब्रॉड ग्रॉस प्रॉफिट लेस अदर इनकम, अदर रेवेन्यू, ये सब ऐड करके टोटल इतना आता है. और उसमें से जो अदर जो एक्सपेंसेस है, जो एक्सपेंडिचर जो है वो इधर लेके हम लोग ये जो 8,32,285 ये माइनस करेगा. तो ये जो नेट जो आता है दिस इज नेट प्रॉफिट. सो ये जो नेट प्रॉफिट रहेगा, ये नेट प्रॉफिट हम लोग प्रॉपर्टर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं. किधर है, हाँ, ये जो प्रॉपर्टर्स कैपिटल अकाउंट में लेता है. अभी हम लोगों ने बैलेंस शीट कहाँ तक ले लिया है, लैंड एंड बिल्डिंग लिया है, फर्नीचर है और उसका लेस डिप्रिसिएशन लिया है, प्रीपेड इंश्योरेंस लिया है. प्रीपेड इंश्योरेंस हम लोग ने इधर जो है, ये जो इधर प्रीपेड इंश्योरेंस बताया था वो इंश्योरेंस का एक एंट्री इधर हम लोग ने इधर डेबिट जो किया है. तो क्रेडिट हम लोग जो प्रीपेड इधर एसेट साइड में आ जाएगा. तो वो प्रीपेड इंश्योरेंस इधर लिया है और कैश इन हैंड ऑलरेडी लिया है, सैंडरी क्रेडिटर्स साथ डेटर्स लिया है. क्लोजिंग स्टॉक इधर जो हम लोग ने क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री इधर बताया है, क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक हम लोग ने इधर ट्रेडिंग अकाउंट में ले लिया. तो उसका इफेक्ट, नेक्स्ट इफेक्ट तो इधर आना चाहिए कि इधर अपना बैलेंस शीट में, तो इधर क्लोजिंग स्टॉक ले लिया. सो सैंडरी क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक. नाउ क्रेडिट साइड में 8 लाख हम लोग ने ऑलरेडी इसका 8 लाख हम लोग ने ऑलरेडी इधर उसका ट्रायल बैलेंस में से हम लोग ने इधर कैपिटल लिया है. और जो नेक्स्ट व्हाट जो कुछ जो नेट प्रॉफिट जो है वो इधर ऐड करेगा नेट प्रॉफिट. और कुछ ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स कुछ बताए नहीं है, ड्राइंग्स नहीं है. तो क्या किया है, ड्राइंग्स नहीं है. तो अगर ड्राइंग्स रहेगा तो ये जो टोटल लेस ड्राइंग्स करके जो बैलेंस इधर आ जाएगा. इधर ड्राइंग्स नहीं है, इसके लिए 8,29 लाख मीन्स इसका टोटल कैपिटल हो गया 37,58,165. क्रेडिटर्स ऑलरेडी लिया था, वेजेस आउटस्टैंडिंग और ट्रैवलिंग आउटस्टैंडिंग लेके इधर वेजेस और ट्रैवलिंग का आउटस्टैंडिंग जो बताया था हम लोग ने इसको इधर ट्रेड, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में 700 ऐड किया है और वेजेस और ट्रैवलिंग का ये किया है. सो टोटल जो 900 रुपीज़ जो आउटस्टैंडिंग का जो है वो ले लिया है. आउटस्टैंडिंग इज़ एन लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है लायबिलिटी. और बिल्स पेबल लिया है, ओवरड्राफ्ट लिया है. ये टोटल देखो दिस विल बी टैलीड. सो वंस द ट्रायल बैलेंस अगर टैली है और ये जो अकाउंटिंग, ये जो एडजस्टमेंट एंट्रीज प्रॉपर करेगा तो दिस बैलेंस शीट में 1 रुपये का भी फ़र्क नहीं आएगा, 1 पैसे का भी फ़र्क नहीं आएगा. फॉर एग्जांपल देखो, आप 1 रुपया डाल के देखो, इधर कुछ चेंजेस, ये इसका जगह पे अगर समझो हम लोगों ने 301 रुपीज़ डाल के देखो तो क्या है, डिफरेंस आ गया. तो ये क्या है, ये जो मैंने टैली जो रखने के लिए हम लोग इसके लिए इसमें से ये माइनस करके ये लिए है, देखो 1 रुपया. सो और समझो ये हो गया, देखो 300 था ना, ये 300 डाल दिया तो 0. ये इसके लिए ऐसा रखा है. So once the trial balance is tallied and the adjustment entries are made properly, the balance sheet will tally exactly. There won't be any single paise difference. So this is the technique of making proprietors final accounts. Now let us go to partnership final accounts. So let us do a partnership final account. I hope you understood this. This is simple. Only thing is that you have to just while taking this now, you should be very careful. Now the principal entries, the principally it is right or wrong, that should be done through audit, or if it is done properly, then there won't be any different thing. Arithmetically this is okay, fine, everything is fine, super, there won't be any problem. The balance sheet is exactly tallied, and then the principal entries should be taken care. Now the partnership capital account. Rajesh and Pratish are partners sharing profits and losses equally. From the following trial balance and adjustments, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. We have to prepare trading profit and loss account. Then balance sheet. So now trial balance is given here, 2 types. Here the trial balance we made in a separate way. See, separate style.
principle is same, debit credit, but instead of taking these two sides, we take one side, and then debit side and credit side is taken here. Here just see the trial balance. That also we explained in our format illustration. So this two sets trial balance. Let us see the credit side. Sales 85,000, sundry creditors 23,000, sundry income 2,000, capital account of Rajesh 35,000, Pratish 35,000, provident fund 10,000, returns 1,500. Here it is the return. If it is taken on the credit side, is a purchase return. कमीशन प्री रिसीव्ड पहले ही मिला, कमीशन ड्यू नहीं है लेकिन पहले से एडवांस में आ गया, दैट इज कॉल्ड प्री रिसीव्ड. प्री रिसीव्ड इज एन इनकम 800 रुपीज़, इनकम फॉर द नेक्स्ट ईयर है, सो दैट इज द रीजन. RDD रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 400 रुपीज़. नाउ डेबिट साइड का सन्ड्री डेटर्स परचेज 65,000 रिटर्न्स. हियर इट इज सेल्स रिटर्न. Where it is returned to say only mentioned means just to confusing all this, this will be given, that is the reason. Okay, otherwise it is a debit side returns means sales return, and credit side returns means purchase return, like that it is. Now sometimes it will be mentioned returns outward, returns inward, and purchase return, sales return, it will be mentioned. Sometimes it is written only returns. So now opening stock 18,000, land and building 10,000, carriage 1200, rent rates and taxes 10,000. Drawings दो जन drawings किया है partners. Rajesh 3,000, Pratesh 2,000, salaries 3,200, bad debts 1,000, machinery 25,000. Now machinery additions on 1st October 2018 10,000, मतलब 15,000 ही था और जो एडिशन 1 अक्टूबर को दिया है 10,000 रुपीज़. सो ऐसा टोटल 25,000 आ गया. एडवर्टाइजमेंट 4,000, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 18,500. नो ये जो एडजस्टमेंट एंट्रीज देख लो. क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 23,000, depreciation land and building 5%, machinery for 10%. Create provision for bad and doubtful debts 5% on sundry debtors, and write off 1,000 for bad debts. इधर bad debts already दिया हुआ है, bad debts already दिया हुआ है, ये additional है, additional write off 1,000 additional, so that should be taken care of. And then bad debts जो के ऊपर doubtful debts create करना पड़ेगा. Goods for 3,000 were sold, बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन द बुक्स ऑफ एंट्री. तो गुड्स का सेल किया है लेकिन एंट्री बुक में नहीं किया है. सो दो इफेक्ट आ जाएगा, एक सेल्स में आएगा, एक डेटर्स में आ जाएगा. या कैश में रहेगा तो कैश में ऐड करना पड़ेगा. तो क्रेडिट में रहेगा तो क्रेडिट का क्रेडिटर का सॉरी डेटर का अकाउंट में एंट्री करना पड़ेगा. देन आउटस्टैंडिंग कैरेज outstanding है. Goods worth 8,000 were purchased on 31st March 2019 and included in the finished stock but no record in the books of account. A good purchase है, purchase entry नहीं किया है लेकिन स्टॉक में लिया है. तो क्या करेगा, स्टॉक में लिया है, स्टॉक में तो ऑलरेडी लिया है, तो लेकिन गुड्स वर्थ ये जो परचेस में लिया नहीं है. परचेस में एंट्री करने का टाइम में परचेस को डेबिट करके क्रेडिट जो सप्लायर को करेगा, क्रेडिटर को. राजेश एंड प्रदेश ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा. पहला ट्रायल बैलेंस ये जो इसमें से लेगा और एक एक टिक करते जाने का. ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ओपनिंग स्टॉक 18,000 लिया, ठीक है, वो एक एक करके हम लोग ये करते जाएंगे. यानी तो दिस इज विल बी बेटर. इधर अगर मीन्स जस्ट हम लोग पेपर पे बनाया रहेगा तो हम लोग ऐसा टिक करते जाएंगे, या कंप्यूटर में ऐसा एक्सेल में रहेगा तो ऐसा कलरिंग ऐसा कुछ करके जाएंगे. ओके, नाउ ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक ले लिया. नाउ क्या है, सन्ड्री डेटर्स का है. सन्ड्री डेटर्स में तो एडजस्टमेंट है, सो क्योंकि इधर सन्ड्री डेटर्स का डाउटफुल डेट्स है ना, सो दैट वी विल टेक सेपरेटली, उसको वर्किंग नोट में ले लेंगे. तो सन्ड्री डेटर्स हम लोग कहाँ लेगा, पहला वर्किंग नोट में लेगा सन्ड्री डेटर्स. See, working notes में goods worth 3,000 is unrecorded, and so it will be sundry debtors and also
सो नाउ रिसर्च फॉर डाउटफुल डेट्स 5%. सन्डे डेटर्स कितने 40,000 इधर से हम लोग ने ले लिया, 40,000 सन्डे डेटर्स ले लिया. नाउ adjustment, bad debts है ना, create provision for bad debts 5% and additional right of 10,000 sorry 1,000 rupees. So उसका adjustment पहले करते हैं. So unrecorded sales था इधर goods वर्थ 3,000. ये जो सेल किया था उसका एंट्री नहीं किया, उसका जो रिकॉर्ड बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो अनरिकॉर्डेड सेल्स 3,000. सो टोटल सेल्स कितना हो गया 43,000. सो 43,000 में से ये जो न्यू बैड डेट्स मतलब ये एडिशनल ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है एडिशनल 1,000 रुपीज़, ये 1,000 रुपीज़ यहाँ ले लिया है. सो टोटल 40 इसमें से जो माइनस किया तो वो माइनस करके 42,000 हो गया. नाउ न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स कितना होता है, ये 5% ये जो होता है 5% इसमें क्रिएट करने के लिए बोला है ना 5% रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स. सो वो क्रिएट किया है, दैट इज़ 2,100. सो सन्डे डेटर्स फाइनल अमाउंट विल बी 39,900. So this will go to the balance sheet. Now बैड डेट्स जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ओल्ड बैड डेट्स कितने हम लोगों ने 1,000 रुपीज़ ऑलरेडी अपना ट्रायल बैलेंस में बताया था. ओल्ड बैड डेट्स ओल्ड बैड डेट्स लिया है. और एडजस्टमेंट किधर है, एडजस्टमेंट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स इधर है, जो हम लोग जो वर्किंग नोट में ले लेंगे. तो दोनों आ गया. रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ले लिया. सो नो टोटल ओल्ड बैड डेट्स था, ये न्यू था, न्यू एडजस्टमेंट में है, न्यू इधर एडजस्टमेंट में है, ये वो हम लोग ने इधर लिया है न्यू बैड डेट्स. सो और ये जो 5% ये रिजर्व ये हो गया, तो ये जो टोटल 1,000 प्लस 2,100, 1,000 प्लस ओल्ड 1,000 प्लस न्यू 1,000 प्लस 2,100, ये 4,100. उसमें से जो ओल्ड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स है ये जो 400 रुपीज़ का, ये माइनस करके जो बैलेंस आया वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले लेंगे. 3,700 किधर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,700 वो ले लिया हम लोग ने. ओके, सो नाउ दैट पार्ट इज़ ओवर. नाउ रिटर्न्स परचेसेस 65,000, परचेसेस 65,000. और इधर ये भी एक एडजस्टमेंट है, तो परचेसेस 65,000 ले लिया. और ये जो एडजस्टमेंट गुड्स वर्थ 8,000 वर परचेज्ड ऑन 31 मार्च, तो ये इधर ऐड किया है. इसका एडिशन किधर लेना पड़ेगा, बैलेंस शीट में सन्ड्री क्रेडिटर्स में. इसका वर्किंग नोट लिया है क्या, नहीं. सो क्या करेगा, जो सन्ड्री क्रेडिटर्स इधर लेने का बैलेंस शीट में, क्योंकि ये जो एडजस्टमेंट एंट्री करने का है, ठीक है, वो तो परचेसेस इधर ऑलरेडी ले लिया है, परचेसेस 65,000. नो ये जो एडिशनल जो ये जो एंट्री का जो इफेक्ट दोनों साइड में साथ में नहीं रहेगा तो फिर भूल जाएगा. तो इसके लिए वो जो भी करते हैं वो साथ में करते जाओ, साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली करते जाओ. ओके, सो मिस्टेक नहीं होएगा. सो नाउ ये 8,000 रुपीज़ इधर परचेसेस लिया, और 8,000 रुपीज़ ये जो एडजस्टमेंट एंट्री है, इसका नेक्स्ट इफेक्ट सेकंड इफेक्ट इधर देने का है. वो किधर है, बैलेंस शीट में जाएगा. बैलेंस शीट में सन्ड्री क्रेडिटर्स 23,000. तो पहला हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स इधर लिया, सन्ड्री क्रेडिटर्स लेने के बाद में बैलेंस शीट में ये 8,000 रुपीज़ का ये जो भी ले लिया अनरिकॉर्डेड, ये जो बैलेंस शीट में ले लिया. सो टोटल जो आया है ये 31,000. तो इधर एक इफेक्ट आ गया, और इधर परचेसेस में ये सेकंड इफेक्ट आ गया. टोटल 73,000 हो गया. उसमें से परचेस रिटर्न इधर कितना है, इधर परचेस रिटर्न्स आ गया ना, तो ये इधर ले लो परचेस रिटर्न. तो ये परचेस रिटर्न हम लोग ने इसमें से माइनस करके 71,500. सो ये हो गया. नाउ नेक्स्ट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट पहला कंप्लीट कर लेते हैं. ओके, नाउ ये करते नाउ सेल्स कितना है 85,000. सेल्स किधर ले लिया 85,000. ओके, नाउ
इधर हम लोगों ने ऑलरेडी ये जो इसमें लिया है गुड्स फॉर 3000 पर सोल्ड बट नो एंट्री फाउंड, सो उसका एंट्री कर देता है, ठीक है। तो ऐड सेल्स नॉट रिकॉर्डेड, वो 3000 लिया, इसका सेकंड इफेक्ट किधर जाएगा, सन्ड्री डेटर्स में, तो वो हम लोग ने ऑलरेडी इधर ले लिया है जो वर्किंग नोट में, इधर अनरिकॉर्डेड सेल्स, तो 43,000 हो गया था, ये 39,900 इधर हो गया, जो फाइनल जो और के मतलब ये है 40,000 सन्ड्री डेटर्स आ गया। सन्ड्री डेटर्स हम लोग ने लिया है क्या इधर, सन्ड्री डेटर्स प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स जो उसका सेकंड इफेक्ट इधर आ गया, टोटल उसमें से बैड डेट्स न्यू और रिजर्व 39,000 इधर हम लोग ने वर्किंग नोट ऑलरेडी दिया हुआ है। नाउ अदर दिस थिंग रिटर्न्स, दिस इज सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न हम लोग उसमें से माइनस करेगा, तो ये टोटल आ गया 85 प्लस 3 88 लेस रिटर्न्स 87,200। ना उसके बाद में जो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग पहले लेते हैं 23,000, इसका एक इफेक्ट इधर 20 ट्रेडिंग अकाउंट में ले लिया, सेकंड इफेक्ट इधर तुरंत हम लोग ने बैलेंस शीट में एंट्री करके क्लोजिंग स्टॉक 23,000, ठीक है। तो वो दोनों का इफेक्ट फिर छूटता नहीं है, मीन्स दैट वी विल नॉट मेक एनी मिस्टेक। 23,000 इधर सन्ड्री क्रेडिट सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में ले लिया और क्रेडिट साइड में लिया, और जो क्लोजिंग स्टॉक इधर बैलेंस शीट में एसेट साइड में ले लिया। कुछ ट्रेडिंग आइटम है क्या देखना है, लैंड एंड बिल्डिंग तो बैलेंस शीट आइटम है, ये रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, ये बैड डेट्स, प्रोविडेंट फंड, ओके। आई थिंक नाउ कैरेज इनवर्ड 1200, ये कैरेज इनवर्ड ये जो 1200 है, कैरेज इनवर्ड 1200 सिर्फ कैरेज लिखा है, इसके लिए कैरेज आउटवर्ड या स्पेसिफाई नहीं किया, कैरेज लिखा है तो उसको ट्रेडिंग आइटम में ले लिया। और कैरेज इनवर्ड में एक एडजस्टमेंट एंट्री है, आउटस्टैंडिंग कैरेज इज़ 500, तो ये जो कैरेज है 1200, 1200 में ट्रेडिंग अकाउंट की तरह, हाँ ट्रेडिंग कैरेज में ये 500 ऐड करके आउटस्टैंडिंग है, टोटल ये इधर ले लिया। ये जो आउटस्टैंडिंग क्या करेगा उसको हम लोग इसका इधर बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में ले लिया था, आउटस्टैंडिंग कैरेज, ओके। नाउ 500 रुपीज़, और नाउ आउटस्टैंडिंग कैरेज हो गया। नाउ व्हाट इज़ दिस, ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट, ओके। सो नाउ ये जो टोटल है, टोटल 1,10,000 में से ये जो इसका जितना टोटल है दैट इज़ 91,200, 91,200 में से ये इसमें से ये 91,200 तो 19,000 प्रॉफिट आ गया, ये ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग इधर ले लिया, ब्रॉड डाउन किया इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में से ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लाया। अभी एक हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला आइटम ले लेगा, सन्ड्री इनकम 2000, सन्ड्री इनकम इज नॉट अ ट्रेडिंग आइटम, सो इट गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गया। और नेक्स्ट हम लोग डेबिट साइड का पूरा एक ले लेते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग तो एसेट साइड में आ गया, लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 लिया, 10,000 का डेप्रिसिएशन बोला है लैंड एंड बिल्डिंग का, लैंड एंड बिल्डिंग 5%, तो 5% डेप्रिसिएशन ले लिया, 10,000 का 500 रुपीज़, वो 500 रुपीज़ इधर डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सॉरी डेप्रिसिएशन इसमें आ जाएगा, वर्किंग नोट नंबर 3 डेप्रिसिएशन। ये कैसा है डेप्रिसिएशन, अच्छा प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग है 10,000 और ये 500। सो नाउ ये लैंड एंड बिल्डिंग का हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग, और रेंट रेट्स एंड टैक्सेस की तरह लिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। देन नेक्स्ट ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा और लास्ट में ले लेगा। सैलरीज 3,200, सैलरीज 3,200। नाउ मशीनरी वो भी डेप्रिसिएशन आइटम है। नाउ एडवर्टाइजमेंट हम लोग ले लेते हैं 4,000। बैड डेट्स इधर हम लोग ने वर्किंग नोट में दिया है, वो हम लोग ने इधर ले लिया है, बैड डेट्स 3,700, तो 3,700 लिया है। नाउ एडवर्टाइजमेंट इधर बैलेंस शीट में ट्रायल बैलेंस में से ले लिया, और प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं आएगा। सो नाउ डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन कितना है, प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन वर्कआउट करने के थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इधर
1 अक्टूबर में 10,000 आया, उसके पहले 15,000 था, पूरा साल का 15,000 का और 10,000 का 6 मंथ्स का, 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक 6 मंथ्स। सो उसका वर्किंग इधर वर्किंग नोट में दिया है। डिप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी 25,000 टोटल है, उसमें से 12 मंथ्स का 15,000 15,000 है, 10,000 का फॉर 6 मंथ्स है, 1 अक्टूबर टू 31 मार्च तक। तो 12 महीने का कितना है, 10% बोलेगा तो 1,000 है, और 6 मंथ्स का 500 है। सो टोटल कितना है 1,500 ये इसका कितना है 10% 1,500, और इसका कितना है 6 मंथ्स का 500, तो 1,500 प्लस 500 2,000, तो 2,000 प्लस ये जो 500 जो लैंड एंड बिल्डिंग का टोटल मिला के टोटल डिप्रिसिएशन देखो, टोटल डिप्रिसिएशन 2,000 इसका प्लांट एंड मशीनरी का और 500 लैंड एंड बिल्डिंग का, टोटल 2,500, तो डिप्रिसिएशन आया 2,500। नाउ ये जो ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम ये 21,000 आ गए। 21,000 में से ये जो एक्सपेंडिचर जो है 14,400 वो माइनस करके 6,600 रुपीज़ उसका प्रॉफिट आ गया, 6,600। और उसमें हम लोग ने ऑलरेडी बोला है इसका इक्वल शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल है 1:1, तो 3,300 6,600 3,300 3,300। अब इनका कैपिटल अकाउंट देखो, राजेश अकाउंट 35,000, प्रॉफिट इधर 30,000 और ये इनका 35,000 उधर ले लिया 35,000 और 35,000 राजेश 35,000 प्रतीश 35,000। नाउ ऐड प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 3,000 3,000 3,000 और 3,300 3,300, टोटल 38,300 38,300। नाउ इधर ड्राइंग्स दिया है इन लोग का, तो लेस ड्राइंग्स दिया है, राजेश 3,000 है और ये प्रतीश 2,000 है, तो उन लोग का अभी ड्राइंग्स क्या बोले लेस ड्राइंग्स 3,000 राजेश का, तो 35,000 बैलेंस आउटर कॉलम में 35,300, और प्रतीश का 38,300 माइनस 2,000 लेस ड्राइंग्स ये 36,300। नाउ ट्रायल बैलेंस में क्या बाकी है, 10,000 प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी है, तो बैलेंस शीट में प्रोविडेंट फंड इधर आ गया, क्रेडिट साइड में था ना, तो प्रोविडेंट फंड 10,000 जो लायबिलिटी साइड में ले लिया। नाउ क्या है प्री रिसीव्ड इनकम, प्री रिसीव्ड कमीशन रिसीव्ड है, इट इज़ नॉट ड्यू, सो इसको बैलेंस शीट में ले लेगा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, तो लायबिलिटी में ले लिया। सो उसके बाद में वो ये साइड कंप्लीट हो गया। ये साइड में किधर बाकी है कुछ, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट किधर, सॉरी मशीनरी भी हम लोग ने ऑलरेडी इधर ले लिया है बैलेंस शीट में। लैंड एंड बिल्डिंग लेस डिप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी लेस डिप्रिसिएशन, टोटल आ गया 100 के लिए है। नाउ इसमें जो ट्रायल बैलेंस में बाकी है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इसे ट्रायल बैलेंस से कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। वो इन्वेस्टमेंट इधर 18,000 असेट साइड में आ गया, इन्वेस्टमेंट 18,500। क्लोजिंग स्टॉक हम लोग ने पहले से ले लिया, इधर जो ट्रेडिंग में लिया उसी टाइम में हम लोग ने इधर वो सब एंट्रीज है ना और साइमल्टेनियसली करने का, तो मिस्टेक नहीं होता है। तो ये अभी सो ट्रायल बैलेंस से और एडजस्टमेंट से कंप्लीट एंट्री हो गया है, तो एक बार फिर चेक कर लेगा इसमें कुछ बाकी है क्या, नहीं है, कुछ भी बाकी नहीं है एंट्री, ये भी पूरा साइड क्लियर है। सो ना वो ट्रेडिंग अकाउंट किया, ट्रेडिंग से ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट इधर ट्रांसफ़र किया, और बाकी सब एंट्रीज लिया, लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी 100 ये सब लिया, और ये लिया, और क्लोजिंग स्टॉक लिया, इधर कैपिटल अकाउंट लिया, फंड लायबिलिटी से ये सब जो ये सब ले लिया। ना तो टोटल देखो 1,13,900 1,30,000, इसमें कुछ भी अगर डिफरेंस रहेगा, फॉर एग्जांपल ये अगर समझो 1,000 रुपीज़ 800 का जगह पे 1,000 रुपीज़ हो गया, देखो डिफरेंस आ जाता है, ये माइनस कर देता है, तो ये है, तो डिफरेंस बिल्कुल नहीं है। दैट मीन्स ट्रायल बैलेंस टैली है तो बैलेंस शीट टैली है। बैलेंस शीट मीन्स दोनों साइड का बैलेंस, जो अपना तरह जो बैलेंस रहता है ना, जो वजन काटा करने का जो आप लोग, तो वैसा ये बैलेंस है, इक्वल होना चाहिए। सो देयर इज़ नो डिफरेंस इन द बैलेंस शीट। नाउ I hope
you all understood this. It's taking much more time. That is the reason now I am not going into more and more detail. So I hope you all have understood this. Is it easy? अगर समझ में नहीं आ रहेगा तो you can just check again and again, go through again and again. Because it's already uploaded in the YouTube, so you can just see whenever you need any doubt or anything, you can just go through again and again, practice it, and same types of examples you make and then practice it, so you can become a very good expert. Okay, then it is additional further. If you know the principles and rules and everything is clear, then it is very easy to anybody to just make the thing. So you can become a very good accountant. Okay, now let us see. We have already completed almost all the parts and up to finalization of property account and partnership account. It will be almost like corporate account also. So it's easy. So now accounting profession has a good scope. Growth can be from a bookkeeping clerk and can reach up to a general manager, chief financial officer, chief executive officer through continuous efforts and learning. It is easy and anyone can learn this. Career path is so much in finance, accounts and accounts related job. इस जो फाइनेंस और अकाउंट्स फील्ड में तो उसका कैरियर पाथ बहुत ज़्यादा है. स्टार्टिंग एकदम लो लेवल से लेके बहुत हाई लेवल तक जा सकता है इफ़ यू टेक इट सीरियसली एंड इंटरेस्टेड. Learning accounts and commerce give inspiration to aspiring and talented individuals who understand the importance of business, and they will start their own business and provide employment to many along with the self growth. खुद का जो ग्रोथ के साथ में दूसरे को भी जॉब देते हैं जो एंटरप्रेन्योर बनेगा. तो बहुत जन है अकाउंट्स और कॉमर्स लेने के बाद में खुद को इंटरेस्ट आ जाता है खुद का कुछ स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस करने के लिए. नाउ one can select their own career as per their interest and vision. जिसका विजन और इंटरेस्ट के अनुसार आप अपना खुद का ये कैरियर सेलेक्ट कर सकता है. You can fulfill your ambition only if you become an entrepreneur. एंटरप्रेन्योर बनेगा तो आपका कुछ भी जो इंटरेस्ट है जो भी है वो ambition fulfill कर सकता है. Hope you all have understood this. We already discussed and illustrated about accounting, types and importance of accounting, various things we have already discussed. Now we learned how to make the financial statements also. Okay, now almost it is complete. 6 videos, that means 5 parts, 6 videos. 2A and 2B is part 2 video is subdivided into 2A and 2B. So total 6 videos is uploaded. So you can just learn that. Okay, thank you for watching. I consider you like the video. It will be useful to you. I hope it is useful to many. Make use of the thing, and if you don't get if you don't understand, read again and again, go through again and again, you will come to know. And please subscribe YouTube channel, comment and share to your contacts so that others also can learn. Thank you so much. Good luck.